Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In this video session, I'm going to provide you the answer of multiple choice question and short response question, that is operating system. Let's start the session. Question number 1 is, in which operating system same type of job means same nature of jobs are grouped together and execute one by one. Options are multiprocessing, multi-programming operating system, batch processing operating system, real-time operating system, or time-sharing operating system. The correct option is batch processing operating system. Batch processing system में क्या होता है कि वो सेम नेचर ऑफ जॉब्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं और फिर बैच के फॉर्म में उसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं. B. Batch processing operating system groups jobs of the same type and execute them in a batches without user interaction. ये इसकी करेक्ट ऑप्शन थी. Option A is multi-programming handles multiple jobs in memory. multi-programming किस लिए यूज करते हैं? मल्टीपल जॉब्स को मेमोरी में हैंडल करने के लिए यूज की जाती है. Real time system responds instantly to input, not suitable for batch process. Okay. D option था time sharing execute job concurrently with quick context switching and not sequentially in batch. ये इसकी ऑप्शन थी. करेक्ट ऑप्शन इसमें बैच प्रोसेसिंग था. Question number 2. In operating system, CPU is rapidly switched between programs so that all programs are executed at the same time. That is called multiple programming operating system, batch processing operating system, real-time operating system, or time-sharing operating system. Correct option is time-sharing operating system. That is option D. क्योंकि इसमें क्या किया जाता है? Justification just for your understanding purpose only. Time sharing operating system uses CPU time slicing to switching between user program quickly. A. Multi-programming runs multiple programs but not in the time slice mode. Batch processing doesn't allow simultaneous user program interaction. And C is real-time focus on response deadlines, not multitasking among users. Question number 3. Which operating system runs application with very precise timing and provide immediate response to avoid safety hazards? Real-time operating system, multitasking operating system, C. Multiprocessing operating system, distributed operating system. तो उसमें correct option is real-time operating system is designed to meet timing constraint for critical task. That is option A. This is option A. B. Purpose of multitasking switching between tasks but lacks real-time deadlines. Multiprocessing increase CPU throughput but not time sensitive. Distributed operating system links multiple machines not optimized for real time. Question number 4. Operating system divides a task into many subtasks and process them independently using many processors. किसमें वो task को subtask में divide करता है? Real time operating system में, distributed operating system में, parallel processing operating system में और multitasking operating system. तो correct option is C, that is parallel processing operating system, because operating system split tasks for simultaneously execution on multiple CPUs. Multiple CPU पे thread उसके बनते हैं और वो सब के सब task को execute किए जाते हैं. Real time doesn't necessarily use parallelism. Distributed operating system process tasks across different systems not in parallel on one. The multitasking alternate task not simultaneously across codes. The correct option is C, that is parallel processing operating system. Question number 5. Which operating system is used in home appliances? Time sharing operating system, distributed operating system, parallel
system, embedded operating system. The correct option is embedded operating systems. Because embedded operating system is lightweight and ideal for appliances, home appliances. आप इसी में यूज करते हैं, फ्रिज में, वॉशिंग मशीन में और डिफरेंट इक्विपमेंट में यूज किए जाते हैं. Time sharing is for multi-user computers. Distributed operating system manages network systems, not standalone devices. Parallel operating system is used in high-performance system, not appliances. Question number 6. Which of the following manages allocation of computer resources during program execution? Memory management होती है, process management होती है, input और output management होती है, या file management होती है. The correct option is memory management because it handles memory assignment to programs. Process management handles tasks, scheduling, not memory. IOD input output deals with device communication. File management handles file operations only. The correct option is memory management. Question number 7. Which of the following creates user groups and assign privileges to them? Process management, IO management, file management, network management. The correct option is D, that is network management, because it used to set access permission for users over a network. Option A is process management control task execution because they are controlling the process. IO handle peripheral devices like keyboard, mouse, joystick, printer. File management manages file read-write, not user roles. Question number 8. In which state a process is waiting to be assigned to the processor by the operating system scheduler? It's a new state, ready state, waiting state, running state. The correct option is in ready state. Process wait for CPU time allocation क्योंकि ready state में वो क्या होता है, वो just wait कर रहा होता है कि process CPU free हो तो वो queue में execution start कर दे, CPU get कर ले क्योंकि वो already queue में होता है. In ready state, process wait for CPU time allocation. New state means process is being created. Waiting time means waiting for IO or event, not CPU. Running state means currently using CPU. Short response question. What is the purpose of operating system in a computer? Operating system का क्या purpose होता है computer में? Without operating system हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि operating system is used to create interface between user and hardware. An operating system acts as an interface between user and hardware. User और hardware के दरमियान क्या होता है? ये interface create करता है. It manages system resources and provide essential services for application execution. Question number 2. What is graphical user interface? Graphical user interface allow user to interact with computer using graphic elements like windows, icons, menus instead of command, जिसमें हम WIMP यूज करते हैं. WIMP. W stands for window, windows होती है. I stands for icons and M stands for menu and P for pointer. तो हम कहते हैं जिसमें WIMPs हो वो graphical user interface होता है. Mention 3 advantages of Unix operating system. Unix is a multi-user, multitasking and portable. It's also secure and used in servers and enterprise systems. Question number 4. Differentiate between multi-programming and time-sharing operating systems. Multi-programming keeps multiple jobs in memory to improve CPU utilization. Time-sharing extends this by allowing multiple users to interact with the system simultaneously. Question number 5. Why multi-processing operating system have been developed? Multi-processing operating system improves performance by using multiple CPU to execute several processes in parallel and enhancing speed and reliability. System development life cycle. Question number 1. Dash is the first step in the system development life cycle, that is analysis, design,
problem identification, and development and documentation. The correct option is problem identification is the first step, because analysis, when we use analysis performed after problem recognition to gather and analyze requirement, design come after analysis, and when system architecture is developed, and option D, development and documentation happens after design and testing. Question number 2, the organized process or set of steps that needs to be followed to develop an information system is known as analytical cycle, design cycle, program specification, system development life cycle. The correct option is system development life cycle. That is option D. Why not A, B, C? Analytical cycle is used, not a standard SDLC concept. Design cycle refers to one phase, not the whole process. Program specification output of one stage. Question number 3. Enhancement, upgradation, and bugs fixation are done during the dash steps in SDLC. Maintenance and evaluation, problem identification, design, development and documentation. The correct option is maintenance and evaluation phase में हम bugs वगैरह को remove करते हैं. Problem identification, it is the initial step, not post develop deployment. Design focus on planning the solution, and option D is concerned with writing code, not long-term updates. Question number 4, dash determines whether the project should go forward. Feasibility, problem identification, system evaluation, program specification. The correct option is feasibility analysis. During feasibility analysis, you can check that whether this process will move ahead or not. Problem identification comes before feasibility and does not evaluate execution. System evaluation happens at the end of the cycle. Program specification define technical details, not viability. Question number 5. Spend most of their time in the beginning stage of the SDLC, talking with end users, gathering requirements, document system, and proposing solutions. That is in project management, system analyst, network engineers, database administrator. The correct option is system analysts, because project managers oversee timeline and deliverables, not requirement gathering. Network engineer focus on network infrastructures, and database administrator manage data, not requirements. Question number 6. The entities having a positive or negative influence in the project completion are known as dash stakeholders, stake supervisors, stake owners, none of the above. The correct option is stakeholders. Why not others? Stake supervisors, not a recognized term in SDLC. Stake owners, not commonly used terminologies. Question number 7. System maintenance is performed in response to dash business changes, hardware and software changes, all of the above, user request for additional features. The correct option is all of the above, means business changes and hardware and software changes. Business changes are valid reason but not the only one. Hardware software changes also valid but not the only one reason. User request only one of many triggers for maintenance. Short response question: what is a system? A system is collection of interrelated components working together to achieve a specific goal. In computing, it refers to software and hardware functioning together. That is called a system. Question number 2. Name different phases of SDLC. Phases of SDLC include problem identification, feasibility study, analysis, design, implementation means development and documentation, testing, verification, and implementation, maintenance, and evaluation. What are the objectives of SDLC?
The main objective of SDLC are to build efficient and reliable systems. Efficient and reliable system meet user requirements, ensure cost effectiveness, and maintain quality standard throughout development. Give some activities of planning phase. In planning phase includes determine project scope. प्रोजेक्ट के स्कोप को हम देखते हैं कि वो कहाँ तक वसी है, स्कोप क्या क्या चीज इसमें कवर अप होगी, एस्टिमेटिंग कॉस्ट टाइम और रिसोर्स एलोकेशन देखते हैं, एंड परफॉर्म फिजिबिलिटी स्टडीज टू डिसाइड इफ द प्रोजेक्ट इज वर्थ परस्यूइंग और नॉट। फिजिबिलिटी स्टडी हमें बताती है कि हमने इस प्रोजेक्ट को आगे लेना है या नहीं, या यहाँ पे हमने इसको स्टॉप कर देना है। Question number 5. Differentiate between functional and non-functional requirements. Function requirement describe what a system should do, like login or data processing. Non-functional requirement defines system attributes like performance, usability, and reliability. Why is the design phase considered the architectural phase of SDLC? The design phase structures how the system will work. It defines architecture, data flow, modules, and interface. Just like architecture, it lays the blueprint for development. Explain फ्लो चार्ट सिंबल। कौन कौन से हम फ्लो चार्ट सिंबल, ओवल शेप होता है, ये हमारी ओवल शेप की तरह ये ओवल शेप आ जाएगी। स्टार्ट एंड एंड, इसमें हम स्टार्ट लिखते हैं और एंड भी इसी में कर देते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल आ जाती है जो हमारा प्रोसेस कहलाता है। ऐसे डायमंड सिंबल आ जाता है जो हम डिसाइड करने के लिए यूज करते हैं, डिसीजन सिंबल के लिए। एरो आ जाती है, डाउन एरो आ जाता है, राइट एरो आ जाता है, लेफ्ट एरो आ जाता है, अप एरो आ जाता है। These symbols help visualize system process logically. What is the purpose of testing verification phase of SDLC? Testing से हम ये देखते हैं कि हमारे जो required functions है वो इसमें fulfill हुआ या नहीं। The purpose of testing is to detect and correct errors in the system before development. Verification ensures that system meets specified requirements. Give main activities of the implementation phase. Implementation involves installing the system, migrating the data. Migrating the data means एक जो हम data है from एक जगह से दूसरी जगह जो हम move करने को हम migrating data कहते हैं. Training users and monitoring initial operations. It is the final delivery stage before maintenance. Chapter number 3, that is object-oriented programming in C++. Let's start the session. Question number 1. Dash is ignored during program execution. क्या चीज इग्नोर की जाती है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान? रिजर्व वर्ड, कॉन्स्टेंट्स को, कमेंट को, एंड कॉन्स्ट क्वालिफायर को। आपको पता है कि कमेंट को इग्नोर किया जाता है जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा होता है, तो कमेंट को हम C++ में हम ये ऐसे कमेंट को शो करते हैं। ये सिंगल लाइन कमेंट होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट। इसके बाद हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट भी होते हैं। मल्टी लाइन कमेंट के लिए अगर मेरे पास ये सपोज मल्टीपल लाइंस लिखी हुई है तो मैंने इसको कमेंट करना है, तो मैंने ये स्लैश से स्टार्ट किया, स्लैश पे एंड कर दिया और इनके इन बिटवीन मैंने क्या कर दिया, स्टार लगा दिया, तो ये मल्टी लाइन कमेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसकी जस्टिफिकेशन भी लिखी है क्यों था होता है, रिजर्व वर्ड क्यों नहीं होते। These are the part of syntax and must be passed by the compiler. Constant are processed by the compiler. Const qualifier affect variable behavior and is also interpreted. Question number 2. What is the range of unsigned short integer? Unsigned में क्या होता है, जस्ट आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आती है, ठीक है, और इसमें वैल्यू, इसमें इसकी रेंज इसको होता है 16 बिट का होता है। तो आप क्या लिखेंगे, आप 2 रेज पावर 16 लेंगे तो इसका आंसर आता है 65,536। ठीक है, इसमें से हमने एक कम करना होता है, तो इस तरह रिमेनिंग आपके पास कितना होगा, 65,535, सॉरी 35, 0 से लेके 35 तक। तो ये करेक्ट आंसर इसका डी आएगा। डी, द रेंज फॉर इन अ साइंड शॉर्ट इंटीजर रिप्रेजेंट साइंड इंटीजर के लिए, ये साइंड इंटीजर के लिए रिप्रेजेंट करता है
रिप्रेजेंट अनसाइंड इंटीजर के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट साइंड शॉर्ट के लिए। तो करेक्ट आंसर कौन सा है इसका? डी। क्वेश्चन नंबर 3, इन C++ द एक्सप्रेशन सम इक्वल टू सम प्लस n कैन आल्सो बी रिटन। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि ये वेरिएबल सेम होने चाहिए, ठीक है। तो सेम वेरिएबल है तो इसको हम लिखेंगे एक मरतबा, पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद ऑपरेटर आता होता है हमेशा। ऑपरेटर इसमें कौन सा यूज हो रहा है? प्लस यूज हो रहा है, फिर हम इक्वल साइन लगाते हैं और फिर जो दूसरा वेरिएबल जो बाकी रह जाता है हम इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। क्या होता है? पहले आपने वेरिएबल लगाना होता है, ठीक है, फिर आपने ऑपरेटर लगाना होता है, फिर आपने इक्वल साइन और फिर आपने दूसरा वेरिएबल या कोई कांस्टेंट या कोई दूसरा एक्सप्रेशन जो भी बचता है वो लिखते हैं। इसमें क्या आ जाएगा? इसमें फिर रिमेनिंग वेरिएबल आ जाएगा, जो बाकी रिमेनिंग वेरिएबल होगा, ठीक है। तो अब देखिए सम प्लस इक्वल टू n इसमें है जी, ठीक है। इसमें इक्वल लगा दिया पहले, इसमें डबल इक्वल लगा दिया, n प्लस ये उसने n से पहले स्टार्ट कर दिया जो कि रॉन्ग था। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू ऑपरेटर। बहुत सिंपल है जी, डबल इक्वल लगाने से इक्वल टू ऑपरेटर आ जाता है। इक्वल टू ऑपरेटर जो कि ऑप्शन बी में पड़ा हुआ है, ठीक है। ये प्लस इक्वल ये एडिशन करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है? एडिशन करने के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। और सी का इसका होता है असाइनमेंट स्टेटमेंट के लिए कि आपने वैल्यू को असाइन करना, तो उसको हम कहते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट। ये असाइनमेंट स्टेटमेंट के यूज हो रहा है। और ये इक्वल प्लस और ये इनकरेक्ट यूज है, क्योंकि ये ऐसा नहीं हम कहीं भी यूज करते, पहले इक्वल लगा ले फिर प्लस लगा देते हैं, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अरिथमेटिक ऑपरेटर। प्लस प्लस अरिथमेटिक ऑपरेटर है। डी, ये आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर है, ये लॉजिकल ऑपरेटर है। परसेंटेज आपके पास, ये आपके पास रिमाइंडर के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पे इक्वल टू आई इक्वल टू लिखा हुआ शायद, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें प्लस प्लस। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर यूज टू फॉर्म कंपाउंड कंडीशन। कंपाउंड कंडीशन अरिथमेटिक ऑपरेटर में, असाइनमेंट ऑपरेटर में, रिलेशन ऑपरेटर में, लॉजिकल ऑपरेटर में। करेक्ट ऑप्शन है जी लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर लाइक फॉर्म कंपाउंड कंडीशन, इससे हम एंड से हम और से हम कंपाउंड कंडीशन लगाते हैं। जैसे हम कहते हैं इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, तो सी आउट ए इज ग्रेटर। तो ये मैंने कंपाउंड कंडीशन लगा दी, कंपाउंड कंडीशन लगा दी, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर आपको पता है कि प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन और रिमाइंडर होते हैं। असाइनमेंट्स ऑपरेटर आपके पास इक्वल होता है, जैसे मैंने लिखा ए इक्वल टू 10, तो ये असाइनमेंट स्टेटमेंट हो गया। रिलेशन ऑपरेटर आपके पास लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू इसमें आ जाते हैं। The number of byte reserved for a variable of data type float is 2, 4, 6, 8. Typically 4 bytes for float. तो ये 4 bytes, 4 bytes का मतलब 32 बिट। तो ये माइनस में 2 रेज पावर 31 से लेके पॉजिटिव में 2 रेज पावर 31, जो आंसर आएगा -1, ये इसकी रेंज की वैल्यू होती है। इस रेंज में ये फ्लोट वैल्यू को ऑक्यूपाई कर सकता है। अगर इससे बाहर होगा तो वो इसको गार्बेज कंसीडर करेगा या गार्बेज वैल्यू शो करेगा। 32 में से एक कम करना है, -2 रेज पावर 31 प्लस 2 रेज पावर 31। तो ये इसका करेक्ट आंसर इसका ये हुआ जी। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ cursor is moved to the next tabular position for printing data। नेक्स्ट tabular टैब की फॉर्म में, तो उसमें किसके लिए? बाय यूजिंग रिजर्व वर्ड, नो। बाय यूजिंग मैनिपुलेटर, नो। बाय यूजिंग एस्केप सीक्वेंस, यस। बाय यूजिंग हेडर फाइल, नो। हम क्या करते हैं? हम लिखते हैं सी आउट स्लैश डबल कोटेशन स्लैश टी, तो ये आपके पास टैब का स्पेस देगा। Reserved words are part of syntax manipulator format output, but not for tab. Header files are for including libraries. Short response question SRQs. Define reserved word and give 3 examples.
रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड ऐसे वर्ड्स होते हैं और स्पेशल वर्ड्स होती है जो लैंग्वेज सिर्फ अपने पर्पज के लिए यूज करती है, उसको हम रिजर्व वर्ड कहते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, डेटा टाइप्स में इंटीजर की एग्जांपल दे देता हूँ, मैं इफ की एग्जांपल दे देता हूँ, इफ एल्स की एग्जांपल दे देता हूँ, डू की एग्जांपल दे देता हूँ, व्हाइल की एग्जांपल ले ले, फॉर की एग्जांपल ले ले, कंटिन्यू की एग्जांपल ले ले, क्लास की एग्जांपल ले ले, स्ट्रक्ट की एग्जांपल ले ले, प्राइवेट की एग्जांपल ले ले, पब्लिक की एग्जांपल ले ले। ये जितने भी है वो सारे के सारे रिजर्व वर्ड्स मैंने लिख दिए। व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग हेडर फाइल इन प्रोग्राम? हेडर फाइल का क्या पर्पज होता है? अगर आप कोई स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं तो उसके लिए आपको हेडर फाइल देना लाजमी होती है। जैसे कि आप स्क्वायर रूट यूज करते हैं, ठीक है, तो स्क्वायर रूट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंक्लूड math.h इंक्लूड करना पड़ेगी, math.h की हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगी। इसके अलावा आप साइन का फंक्शन को परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है, साइन की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू लिखती है, कॉस की वैल्यू लिखती है, ठीक है, tan की वैल्यू लिखती है। तो ये सारी की सारी जो आपके पास है वो सारे के सारे आपको math.h में प्रोवाइड करेंगे। जो भी आपने स्पेशल फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवानी हो तो उसके लिए आपको हेडर फाइल लिखना पड़ेगी। ये सब के सब बिल्ट इन फंक्शन है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग वेरिएबल नेम्स आर वैलिड और इनवैलिड, गिव रीजन। ए 1 2 3 बिल्कुल वैलिड वेरिएबल है, ठीक है, ए बी सी डी वैलिड वेरिएबल है, 5 HML नॉट वैलिड वेरिएबल है क्योंकि ये 5 से स्टार्ट हो रहा है, डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। डॉट AL ये इनवैलिड वेरिएबल है क्योंकि इसमें डॉट यूज किया जा रहा है। F3SS ये वैलिड वेरिएबल है। $, इसमें आपने स्पेशल लेटर यूज कर रहे हैं, ये आप नहीं यूज कर सकते, ये वैलिड वेरिएबल नहीं है। नेट अंडरस्कोर वेट ये बिल्कुल वैलिड वेरिएबल है। सी आउट ये इनवैलिड वेरिएबल है क्योंकि ये रिजर्व वर्ड है। सी आउट C++ आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यूज की जाती है। Why escape sequence is used? Give 3 example with explanation. Escape sequence help format output for better readability. The purpose is to better readability. /n न्यू लाइन के लिए, /t टैब देने के लिए, डबल कोटेशन प्रिंट और डबल कोट कैरेक्टर ये हम डबल कोटेशन प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ सी आउट, मैं लिखा सी आउट लिखा, मैं लिखा जी ए लिखा, /t लिखा, फिर इसके बाद मैं बी लिखता हूँ, फिर /t लिखता हूँ, ए के बाद टैब देगा, फिर बी लिखेगा, फिर टैब देगा, फिर सी लिखेगा ये, ठीक है। तो ये मैंने टैब के लिए यूज कर लिया, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ न्यू लाइन के लिए यूज करना, मैं /n भी यूज कर सकता हूँ। अगर ये मुझे प्रिंट करना है डबल कोटेशन में हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये डबल कोटेशन में मुझे प्रिंट करना, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा सी आउट करे, सी आउट डबल कोटेशन प्रिंट करने हैं, ठीक है। डबल कोटेशन के अंदर मैंने ये स्टार्ट कर लिए, ये स्टार्ट कर लिया मैंने, जो कि मैं नॉर्मल डबल कोटेशन यूज करता हूँ, ठीक है। इसके बाद मुझे ये डबल कोटेशन प्रिंट करने मुझे स्लैश लगाना पड़ा मुझे, फिर मैंने डबल कोट्स लगा दिए, ये डबल कोट्स लगा दिए, फिर मैंने लिखा हिज फर्स्ट फ्लाइट। लिखने के बाद मुझे डबल कोटेशन लगाने, तो फिर मुझे क्या स्लैश लगाना पड़ा और फिर मुझे डबल कोट्स लगाने पड़े, ठीक है। और ये मेरे पास ऑलरेडी है, तो ये ऐसे इसको मैं लिखूंगा जी, ठीक हो गया। चैप्टर नंबर 4 दैट इज कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो हम सेशन स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, हाउ इज सिंगल स्टेटमेंट फॉर लूप terminated? With a colon, with the right braces, with a right brackets, with a semicolon. तो हम क्या यूज करते हैं? हम सेमीकोलन यूज करते हैं। सेमीकोलन इज द करेक्ट ऑप्शन। कॉलन हम किस लिए यूज करते हैं? कॉलन इज यूज सम लैंग्वेजेस लाइक पाइथन with the right braces. Right braces are used to close code brackets, not for terminating statement. Right brackets do not exist in syntax. Question number 2, how is multiple statement for loop terminated? With a colon, with a right braces, with a right bracket, with a semicolon. तो with a right braces यानी हम इसके साथ terminate करते हैं, जबकि with a right bracket is not a valid delimiter. With a semicolon terminates single statement, not code blocks.
Question number 3, which of the following can be used to replace ternary operator? if else statement, if else statement के साथ हम रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हम टर्नरी ऑपरेटर ऐसे यूज करते हैं, हम लिखते हैं कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन ट्रू हो तो ये हम ट्रू स्टेटमेंट लिखते हैं, यानी कि हम कोई भी ट्रू होने पे जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं वो लिखते हैं, और कॉलन के बाद हम उसका फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं, फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं, फिर हम यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं। जैसे मैं कहता हूँ ए ग्रेटर देन 10 हो तो सी आउट ग्रेटर लिख दो, एल्स सी आउट लेस लिख दो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू रिप्लेस स्विच स्टेटमेंट? कौन से हम स्विच स्टेटमेंट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं? इफ एल्स स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट, व्हाइल लूप। हम इसको हम कर सकते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट को, क्योंकि हम लिखते होते हैं इफ लिखते हैं, फिर हम कंडीशन देते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, एल्स इफ कंडीशन लिखते हैं, उसके स्टेटमेंट देंगे, सो ऑन हम एल्स लिख देते हैं। सेम वे हम क्या करते हैं, स्विच करते हैं वेरिएबल को, स्विच करते हैं यहाँ पे एक वेरिएबल को या कॉन्स्ट वेरिएबल को, ठीक है, ब्रेसिस देते हैं, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, कांस्टेंट 1 लिखते हैं, कांस्टेंट 1 स्टेटमेंट लिखते हैं और ब्रेक करते हैं, फिर हम कांस्टेंट 2 लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं और ब्रेक लिखते हैं, सो ऑन। लास्ट वाला क्या होगा, लास्ट में हम डिफॉल्ट लिखते हैं, डिफॉल्ट लिखते हैं, स्टेटमेंट लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ये जो आपकी ब्रेसिस है इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ये इधर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये एक था कि इफ एल्स, ये इसका ऑल्टरनेट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, अ लूप is more appropriate to use than a for loop. The body of the loop is to be executed at least once. The termination condition occurs unexpectedly. The program executes at least once when the number of iterations are known in the advance. जब आपको पता हो कि आपने कितने टाइम्स के लिए लूप को एग्जीक्यूट करवाना है तो आप डेफिनेटली फॉर लूप को यूज करेंगे, ठीक है। जबकि बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस, ये हम यूज करते हैं डू वाइल के लिए, ये लिखा हुआ मैंने, ये डू वाइल के लिए यूज करते हैं। द टर्मिनेशन कंडीशन अकर्स अनएक्सपेक्टेडली, तो नॉट स्पेसिफिक, कोई भी लूप यूज कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन रिफर गारंटी रिफर्स टू एटलीस्ट इन डू वाइल लूप, तो हम उसमें डू वाइल लूप यूज करेंगे। Question number 6, in which situation a do while loop is more appropriate to use? When the body of the loop is to be executed at least once. Exactly. जब हम चाहते हैं कि कम से कम एक मरतबा हमारा कंट्रोल लूप के अंदर लाजमी मूव करे तो हम डू वाइल लूप को यूज करते हैं। When the loop terminates unexpectedly, when the program execute at least once, when the program execute, ये प्रोग्राम की बात कर रहा है, वो बॉडी की बात कर रहा था। ए और सी में डिफरेंस क्या है, वो बॉडी की बात कर रहा है, ये प्रोग्राम की बात कर रहा है। और लूप की बात कर रहे हैं तो उसमें एक बॉडी भी पार्ट होता है उसका, बॉडी उसका लूप का। When the number of loop iteration are known in advance, वो फॉर लूप के लिए है। क्वेश्चन नंबर 7, in which situation a for loop is more appropriate to use? When the body of the loop is to be executed at least once, when the loop terminates unexpectedly, when the program executes at least one, when the number of iteration is known, unknown. Is known, not unknown. It should be known. Question number 8, which of the following transfer control to be beginning of the loop, skipping the remaining statement that should be continue statement? Yes. Continue statement में हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट करवाते हैं, ठीक है। जबकि ब्रेक स्टेटमेंट उसको ब्रेक करती है, नेस्टेड लूप में एक लूप के अंदर दूसरा लूप लगा देती है, एग्जिट फंक्शन में होता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है। शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन, व्हाई कंट्रोल स्टेटमेंट आर यूज्ड इन सी प्लस प्लस? कंट्रोल स्टेटमेंट आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम। दे अलाउ ब्रांचिंग, उनको हम ब्रांचिंग भी कहते हैं, जैसे कि हम इफ एल्स, ये ब्रांचिंग में आ जाता है। लूप में आपके फॉर लूप आ जाते हैं, फॉर लूप, डू वाइल लूप आ जाता है, इसके बाद डू वाइल आ जाता है, ये लूप में आ जाते हैं। एंड डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन द कंडीशंस। डिफरेंशिएट बिटवीन इफ एल्स एंड एल्स इफ।
If else execute one of two blocks based on a condition. Else if is used to handle multiple condition in a sequence. जैसा कि देखें, मैं कहता हूं if a greater than b, see out a is greater, else see out b is greater. ठीक हो गया। जबकि एल्स इफ में हमने क्या करना होता है, हमने तीन स्टेटमेंट, तीन से ज्यादा स्टेटमेंट लिखनी होती है, कंडीशन चेक करनी होती है। यहाँ पे एक कंडीशन चेक कर रही है, यानी कि हमारे पास ऑप्शंस कितनी है, हमारे पास दो ऑप्शन है, यहाँ पे टू ऑप्शन है। ये हमारे पास कितनी ऑप्शन है, टू ऑप्शंस। अगर हमारे पास मोर देन टू ऑप्शंस हो, मोर देन टू ऑप्शंस, तो फिर आपको यूज करना पड़ेगा एल्स इफ। लाइक if average greater than equal to 80, grade equal to A plus. Else if average greater than equal to 70, grade equal to A. Else if average greater than equal to 60, grade equal to B. Else grade equal to F. तो यहाँ पे मैंने कितनी ऑप्शंस डिस्कस की, ये मेरे पास एक ऑप्शन थी, ये मेरे पास दूसरी ऑप्शन थी, ये मेरे पास तीसरी थी, ये मेरे चार, मैंने 4 ऑप्शंस डिस्कस की। तो मुझे क्या लगाना पड़ा, एल्स इफ लगाना पड़ा। डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर एंड व्हाइल लूप। फॉर और व्हाइल लूप पे डिफरेंशिएट कर कीजिए। अ फॉर लूप इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ आइटरेशन इज नोन एंड व्हाइल लूप इज यूज्ड व्हेन द आइटरेशन डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस इवैल्यूएटेड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। इसमें नॉन एग्जीक्यूशन होती है और इसमें अननोन एग्जीक्यूशन होती है, अननोन एग्जीक्यूशन होती है और आइटरेशन होते हैं। ठीक है, व्हाइल लूप में। तो ये इसमें डिफरेंस है। जैसा कि मैं एग्जांपल यहां पे देता हूं, मैं कहता हूं फॉर इंटीजर x इक्वल टू 1 से स्टार्ट करें, x लेस देन इक्वल टू 10 तक चले, x प्लस प्लस करें और सी आउट x करें। इसमें क्या मैंने 10 तक मैंने एग्जीक्यूट करवा लिया। इसमें मैं कहता हूं सी आउट, एंटर द नंबर, एंटर द नंबर, नंबर आपने करवा लिया जी n में, तो आप कहते हैं मूव करता रहे while n greater than 0, सी आउट, एंटर नंबर, एंटर द नंबर, एंटर द नंबर, सी इन की किसमें कर लिया आपने, n में, और ये मैंने लूप लगा दिया जी, लूप को एंड कर दिया। अब देखिए एंटर द नंबर, सीन में वो नंबर लेगा, जो भी आप वैल्यू एंटर करेंगे वो cn में स्टोर कर देगा। अगर वो n ग्रेटर देन 0 होगा तो फिर वो आपसे नंबर पूछेगा, n में स्टोर कर देगा, फिर वो ऊपर मूव करता जाएगा। ये मूव करता रहेगा जब तक n आप ग्रेटर देन 0 देते रहेंगे। कब ये स्टॉप होगा, व्हेन यू विल एंटर वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0। जब n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होगी तो ये स्टॉप होगा। तो जो ये दोनों में, अब मुझे नहीं पता ये आपने कब n की वैल्यू 0 लिख देनी है, 0 से लेस लिखनी है, मुझे नहीं पता कितनी मरतबा ये चलेगा। ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक आप n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 देंगे। What is the use of break and continue statement in C++ program? Break exit the loop completely while continue skip the remaining code in the loop and start the next iteration. मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ ब्रेक के लिए। मैं कहता हूँ फॉर इंटीजर x इक्वल टू 1 से स्टार्ट करे, x लेस देन इक्वल टू 10 तक मूव करे, x में प्लस प्लस करे और ये काम क्या करे, सी आउट करे, x करे और एंड लाइन करे। और इसके बाद देखे इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो तो इसको ब्रेक करे। अब देखिए ये मैंने इसका फॉर लूप भी एंड कर दिया। जब x की वैल्यू 5 होगी ना तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ मैं लिखता हूं फॉर इंटीजर x इक्वल टू 1 से स्टार्ट करे, x लेस देन इक्वल टू 10 तक मूव करे, x में प्लस प्लस करे और मैं कहता हूं सी आउट करे वैल्यू ऑफ x एंड एंड लाइन करे। और यहां में मैं कहता हूं इफ ओके, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 देन कंटिन्यू करे और यहां पे सी आउट क्या करे, हेलो, हेलो लिखते। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या पुट करेगा, पहले उसकी डिस्प्ले करेगा, 1 वैल्यू डिस्प्ले करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा,
4 करेगा, 5 के केस में वो ब्रेक हो जाएगा, तो इसकी आउटपुट सिर्फ ये आएगी। जबकि इस केस में क्या होगा, x इक्वल टू 1 करे, सी आउट 1 करेगा और देखेगा 1 ग्रेटर देन 5 तो कंटिन्यू नहीं होगा, सी आउट हेलो, फिर 2 हेलो, 3 लिखने के बाद हेलो। अब मैं ज्यूम कर ले कि आपने यहाँ पे एंड लाइन लगाया हुआ है, एंड लाइन लगाया हुआ है, ठीक है। 2 3 हेलो, 4 हेलो। अब देखिए जब 5 आएगा ना तो कंटिन्यू फिर वो क्या कर देगा, 5 लिखेगा, यहां से ऊपर चला जाएगा, 5 हेलो के पास नहीं जाएगा, फिर 6 7 8 9 10। तो ये दोनों में फर्क था, ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट में। द एग्जिट फंक्शन इज used to determine a program immediately. It can be used to end execution due to an error or successful termination. ये इसका पर्पस था जी। What is nested loop? Give one example. Nested loop की मेरी बहुत वीडियो एक वायरल हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। नेस्टेड लूप होता है एक लूप के अंदर एक और लूप लगा देने को हम नेस्टेड लूप कहते हैं। सपोज मैं कहता हूँ फॉर इंटीजर x इक्वल टू 1 से स्टार्ट करे, x लेस देन इक्वल टू 5 तक मूव करे, x में प्लस प्लस करे। अब ये एक मरतबा चलेगा, जबकि इसके अंदर जो लूप लगाया होगा वो जितनी बार भी लिखे वो चल पड़ेगा। 1 से लेके y लेस देन इक्वल टू 3 तक मूव करें, y में प्लस प्लस करें और जस्ट क्या करें, सी आउट करें x प्लस वाई को, ठीक है। एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करें, x प्लस वाई लिखे और इसके बाद स्लैश टी दे, टैब का स्पेस दे और इसके बाद क्या करें, सी आउट एंड लाइन करें। इस लूप की सिर्फ एक, ये इस लूप की एक स्टेटमेंट इसका पार्ट है, ये ऑटो लूप का पार्ट है। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, x की वैल्यू 1 होगी, x एक मरतबा चलेगा भी, ये देखिए x जब भी एक मरतबा चलेगा तो y क्या करेगा, 1 के लिए भी चलेगा, 2 के लिए चलेगा और 3 के लिए भी चलेगा। तो इसमें क्या करेगा, x प्लस वाई हो रहा ना, यानी इसको और इसको ऐड कर रहा है वो 2 आ जाएगा, इसको और इसको ऐड कर रहा है 3 आ जाएगा, कॉमा नहीं आएगा, ये कॉमा नहीं लगाएगा, टैब देगा, फिर 1 को और 3 को वो ऐड करेगा 4। इसके बाद x सेकंड टाइम चलेगा, y फिर 1 के लिए भी चलेगा, 2 के लिए भी चलेगा और 3 के लिए भी चलेगा। और आउटपुट क्या हो रही है, आउटपुट डिस्प्ले हो रही है 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5। यानी फर्स्ट में ये लाइन शो करेगा, दूसरे में ये लाइन शो करेगा 3 2 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5। अब जब x 3 टाइम चलेगा, y 1 से लेके फिर 3 टाइम चलेगा, x की वैल्यू क्या आउटपुट शो करेगा, 3 + 1 4, 3 + 2 5 6। तो आपको पता चल गया होगा कि इसकी आउटपुट क्या आएगी। ये देखें आउटपुट आएगी इसकी 2 3 4, फिर 3 4 5, फिर 4 5 6 5 6 7 6 7 8। ये इसकी आउटपुट आएगी इस प्रोग्राम की। ये मैं नेस्टेड लूप के थ्रू एक प्रोग्राम लिख के आपको दिखा दिया। राइट द फॉलोइंग कोड यूजिंग व्हाइल लूप। हमने क्या करना है, इस कोड को व्हाइल लूप के थ्रू लिखना है। ये एक्चुअली हमने क्या कर दिया, व्हाइल के थ्रू लिख दिया है, ठीक है। फॉर में लिखा होगा, आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा, और हमने इसमें लिख दिया, व्हाइल लूप में लिख दिया, ठीक है। अगर फॉर लूप में कहते तो वो मैं लिख देता हूँ। ऑफ चैप्टर नंबर 5, दैट चैप्टर नंबर 5 इज अबाउट अरेज एंड स्ट्रिंग्स। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिक्लेरेशन ऑफ अरे। इंटीजर ए, ये करेक्ट नहीं हो सकती, ये जस्ट लाइक अ वेरिएबल की तरह होती है, ये हम इसमें यूज करते ही नहीं है, तो ये भी करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट ये होती है और ये करेक्ट नहीं है, हम इसमें वो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, जबकि ये पैरेंथेसिस हम यूज नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द इंडेक्स नंबर ऑफ द लास्ट एलिमेंट ऑफ एन अरे विद 5 एलिमेंट्स। अगर 5 एलिमेंट्स की मेरे पास अरे होगी तो लास्ट इंडेक्स नंबर 4 होगा। क्यों, क्योंकि वह 0 1 2 3 एंड 4, ये 5 एलिमेंट इस तरीके से होंगे, तो ये लास्ट इंडेक्स इज 4, क्योंकि लास्ट इंडेक्स साइज -1 होता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज इन अरे। अरे क्या होती है, अरे इज अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, अरे इज अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप प्लेस्ड इन
नॉन कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन, ये बिल्कुल ठीक था लेकिन नॉन कंटिगुअस ने आके काम खराब कर दिया। ठीक है, एन अरे इज अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप प्लेस्ड इन कंटिगुअस मेमोरी, ये कंटिगुअस मेमोरी है। ठीक है, तो इसमें से सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है, जबकि दूसरी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following identifies the first element in array named temp? temp 0, temp 1, temp of 1, temp curly braces 0। ये लिखने का स्टाइल नहीं होता, ये भी लिखने का स्टाइल नहीं होता है, ये होता है लेकिन क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट नहीं होगा, ये सेकंड एलिमेंट होगा। तो करेक्ट आंसर इज दिस, फर्स्ट एलिमेंट के लिए। Which of the following identifies the last element of the array declared as integer a of 10? a of 10 और a of 10 के साथ जो डिक्लेयर करेंगे तो उसका लास्ट एलिमेंट होगा, इसका भी साइज -1 9 और इसका भी -1 9। तो इसमें देखें जो करेक्ट ऑप्शन इज दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, a of 9 and a of 9। Next question is, given the following integer k 3 5 equal to this initialization which is in k13। k13 हम देखते हैं, ये देखिए, ये हम इसको कहेंगे ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा, 2 3 4। तो अब देखिए कौन सा कह रहे हैं 1 और 3, यानी कि 1 में ये इसको इस रो से और इस कॉलम से ये 25 होगा, 12 8 18 25 15, correct option is 25। These are the justifications I'm explaining there। Question number 7, given that integer 3 4 12 0 5 10 यानी अरे को इनिशियलाइज कर दिया, वो कह रहा है कि which statement will replace 19 with 50। 19 को हमने रिप्लेस करना है 50 के साथ, तो कौन सी स्टेटमेंट होगी? तो देखते हैं हम इसको, ये देखें, ये 0 के लिए ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, 0 कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो 19 देखिए, 19 इस जगह पे पड़ा हुआ है, यानी रो में 1 है, कॉलम में देखें, कॉलम में 0 1 2, कॉलम में 2 है। जो 1 2 के साथ स्टार्ट हो रही होगी वो हम अरेज के साथ यूज करेंगे। 1 2 देखिए, 1 2 के साथ कोई यूज हो रही, यस, b इक्वल टू 50। करेक्ट ऑप्शन इज बी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, यस, करेक्ट ऑप्शन इज दिस। Which of the following function is used to append a string onto the end of another? That should be string copy, means string cat। अब देखिए string copy क्या करेगी, string copy एक string दूसरे से कॉपी करती है, string cat क्या कर देती है, ये append one string to another string। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, use to append। ठीक है, तो हम string cat यूज करेंगे, string cat। स्ट्रिंग लेंथ, ये इसकी लेंथ को कैलकुलेट कर देती है। स्ट्रिंग कंपेयर, ये इसके कंपैरिजन के लिए यूज करती है। ये किस लिए यूज करती है, ये यूज करती है कॉपी के लिए। जब हमने एक चीज की दूसरी कॉपी करनी हो तो हम ये स्ट्रिंग कॉपी यूज करती है, वो स्ट्रिंग वही कॉपी हो जाएगी। स्ट्रिंग कैट करते होते हैं अपेंड के लिए। स्ट्रिंग लेंथ, ये लेंथ कैलकुलेट करने के लिए वो कितनी साइज की स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग कंपेयर, ये कंपैरिजन करने के लिए यूज करते हैं। Next is define array and give its advantages in programming। An array is a collection of elements। array collection of elements होती है, लेकिन इसमें क्या होता है ये याद रखिए आपने, collection of elements with the same data types। collection of elements होती है with the same data type। ये जो वर्ड्स है ना सेम, इस वजह से वो आपका ये करेक्ट आंसर होगा, सेम डेटा टाइप्स एलिमेंट। यानी कि अगर इंटीजर होगा तो सब एलिमेंट इसमें इंटीजर के ही होंगे, अगर फ्लोट होगा तो सब एलिमेंट इसमें फ्लोट के ही होंगे, अगर डबल अरे होगी तो सब एलिमेंट इसके फ्लोट के डबल के ही होंगे। अरे मेक्स इट्स इजियर टू मैनेज मल्टीपल वैल्यूज अंडर अ सिंगल वेरिएबल नेम। इसमें मल्टीपल वैल्यूज को हम सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल का नेम लिखते हैं और उसमें स्टोर कर लेते हैं और अपना काम कर सकते हैं।
allowing indexing and loop-based processing for efficient data handling. Second question, differentiate between one-dimensional array and two-dimensional. One-dimensional array में और two-dimensional array में क्या फर्क होता है? One-dimensional array store data in a single row, एक single row में करती है वो, जैसा कि integer a equal integer array 5 लिखा हुआ है. A two-dimensional array store data in matrix form, किसमें करती है? Matrix form में, with rows and column के साथ, like 3 row 4 column. फर्स्ट हम इसको लिखते हैं, फर्स्ट हम लिखते हैं रो को और सेकंड पैरामीटर होता है हमारा कॉलम का. क्वेश्चन नंबर 3-4, व्हाट्स द पर्पस ऑफ साइज ऑफ फंक्शन? गिव वन एग्जांपल. द साइज ऑफ फंक्शन इन C++ रिटर्न्स द नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्युपाइड ऑफ डेटा टाइप्स. ये साइज उससे पता चलता है कितने नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्युपाइड किए हैं. फॉर एग्जांपल साइज ऑफ इंटीजर आप लिखेंगे ना, साइज ऑफ इंटीजर वो कहेगा कि ये 4 बाइट का है, 4 bytes is occupied key. Declare an array named X that has 3 rows and 5 columns and assign its value from 1 to 15 in the declaration statement. X3, 5 means 3 rows and 5 columns. First row में 1, 2, 3, 4, 5, then 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. तो ये मैंने इसको डबल अरे को डिक्लेयर कर दिया. ये इसकी स्टार्ट ब्रेसेस थी, ये इसकी एंड ब्रेसेस थी, और हर रो में एक सेपरेट उसके साथ में लिख दिया, स्टार्ट ब्रेसिक के साथ और क्लोजिंग ब्रेसिक के साथ. डिफाइन स्ट्रिंग एंड एक्सप्लेन हाउ इट इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी. A string is a sequence of characters and ending with a small character that is 0. In memory, each character is stored in consecutive memory location, allowing indexed access. Number 6, what is the advantage of using cin.get function over cin statement for reading a string? Cin.get can read an entire line including space, unlike cin, which stops at white spaces. This makes it suitable for full name or phone or phrase. For example, अगर आपने स्टोर करना है अहमद बिन माजिद, तो अगर आप सीन यूज करेंगे वो अहमद तक गेट करेगी, बाकी उसको वाइट स्पेस बाकी को इग्नोर कर देगी. तो इसको आप पूरे को स्टोर करना है, तो देन यू हैव टू यूज cin.get. Differentiate between string copy and string compare function. Definitely strcp used to copy one string to another string, while string compare is used to compare two strings. String compare returns 0 if the strings are equal. अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल होगी तो वो क्या करेगा, वो 0 रिटर्न करेगा, और 0 मुझे शो करेगा both strings are. Question number 8, differentiate between string length and string cat function. String length function returns the length of a string excluding the null terminators. String cat append one string to the end of another. जैसा कि फॉर एग्जाम्पल आपने मेन लिखा, मेन के बाद आप लिखते हैं करेक्टर इक्वल टू हेलो, हेलो लिखा, और इसके बाद आप सी आउट करते हैं स्ट्रिंग लेंथ ऑफ एस के, और यहाँ पे आप मेन को क्लोज कर देते हैं. ये मैंने एग्जांपल दे दी स्ट्रिंग लेंथ कैलकुलेट करने का, जितनी इसकी लेंथ होगी वो इधर शो कर देगा. दूसरे प्रोग्राम में आपने मेन लिखा सेकंड एग्जांपल में, और आप कहते हैं करेक्टर एस ऑफ 10 एलिमेंट्स की आपने एरे डिक्लेयर कर ली. फिर आप यूज करते हैं स्ट्रिंग कॉपी एस में क्या लिख दें हाई, और बाद में आप सी आउट करें एस को, तो ये क्या करेगा, इसमें एस हाई इसमें कॉपी कर देगा एस में. नेक्स्ट एग्जांपल देख लें. नेक्स्ट प्रोग्राम में आप स्ट्रिंग कैट की एग्जांपल देख लें. मेन लिखा आपने करेक्टर एस 10 इक्वल टू आपने लिखा हाई, और बाद में आप करते हैं स्ट्रिंग कैट एस कॉमा हेलो, और बाद में सी आउट एस को आप डिस्प्ले करते हैं, तो इससे क्या करेगा, वो शो करेगा हाई हेलो. इसमें मैंने स्ट्रिंग लेंथ की एग्जांपल दे दी, स्ट्रिंग कॉपी की एग्जांपल, स्ट्रिंग कैट की. अब आपको मैं कंपेयर की भी स्ट्रिंग कर देता हूँ.
मैं लिखा मेन लिखा करेक्टर S1, इसमें मैं लिखा जी सिविक करेक्टर S2, इसमें मैं लिखा सपोज टोयोटा, और मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ इफ स्ट्रिंग strcmp स्ट्रिंग कंपेयर करे किसको, S1 को और S2 को, और वो इक्वल टू 0 दे, तो इसका मतलब क्या होगा, सी आउट both are equal, both are same string, else see out both are different string। ये मैसेज वो डिस्प्ले कर देगा। और यहाँ पे आपने मेन क्लोज कर, स्ट्रिंग कंपेयर का मैंने ये लिख दिया, बाकी ये मैंने लिखे हुए ये स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग कॉपी एंड स्ट्रिंग कैट का। और लास्ट में मैं लिखना चाहता हूँ चैप्टर नंबर 6 दैट इज फंक्शन, द फिनोमिना of having two or more functions in a program with the same names but different number of types of parameter is known as, same name हो लेकिन उनके पैरामीटर डिफरेंट हो। जैसा कि मैं कहता हूं इंटीजर सम a, b, फिर मैं कहता हूं इंटीजर सम a, b, c, इस तरह के हो तो हम इसको क्या कहते हैं, इनलाइन फंक्शन कहते हैं, नेस्टेड फंक्शन कहते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं, रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इज फंक्शन ओवरलोडिंग। ये मैंने फंक्शन ओवरलोडिंग की आपको एग्जांपल दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वी डिक्लेयर अ फंक्शन विद a dash if it doesn't have any return type, long, double, void, integer। तो हम इसको void के साथ लिखते हैं जिसकी कोई रिटर्न टाइप ना हो। जैसे मैं कहता हूं, मैं लिखता हूं void सम इंटीजर कॉमा इंटीजर। मैं एक ऐसा फंक्शन डिक्लेयर करने जा रहा हूं जो वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा लेकिन दो आर्गुमेंट लेगा। अगर मैं लिखता हूं इसको इंटीजर सम इंटीजर कॉमा इंटीजर, तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन यहां से वैल्यू रिटर्न करेगा जिसकी डेटा टाइप्स मस्ट बी इंटीजर होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन होप आपको समझ आ चुका होगा। आर्गुमेंट ऑफ अ फंक्शन आर सेपरेटेड विद, डेफिनेटली कॉमा है इसमें, हम कॉमा लगाएंगे क्योंकि हम आर्गुमेंट ऐसे ही करते हैं ना। जैसे मैं कहता हूं सम में मैंने ए लिखा बी लिखा तो ये मैंने कॉमा लगा दिया। ठीक है। मैं कहता हूं इसको सी में वैल्यू स्टोर हो जाए, फिर मैं कह सकता हूं डी इक्वल टू सम 4,5, तो ये मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूं विद आर्गुमेंट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, variable inside parentheses of function declaration have less access dash access, that is a local access, global access, module access, universal access। तो करेक्ट आंसर इज लोकल एक्सेस, वो उनकी लोकल एक्सेस होते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं इंटीजर सम इंटीजर कॉमा इंटीजर, इंटीजर ए लिख लेता हूं, इंटीजर बी लिख लेता हूं सपोज, और यहां पे मैं कहता हूं इंटीजर सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो रिटर्न सी करे। अब इस केस में देखिए जो मैं इंटीजर इसके अंदर डिक्लेयर कर रहा हूं ना, वो लोकल वेरिएबल है, उसको सिर्फ इस पैरेंथेसिस के अंदर ही आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसको आउटसाइड आप कॉल करेंगे ना, यानी कि सी लिखेंगे ना, सी आउट करेंगे सी, तो कोई भी नहीं जानता होगा इसको कि ये सी क्या चीज है। ठीक हो गया। तो इसका स्कोप लोकल वेरिएबल के तौर पर किया जाता है। Next question number 5. Observe the following function declaration and choose the best answer. Int divide int a and int b equal to 2. Option A है जी variable b is of integer type and will always have value 2. Wrong. अगर आप वैल्यू पास करेंगे तो वो वैल्यू वो ले लेगा। Variable a and b are of integer type, बिल्कुल ठीक है, and the initial value of both variable is 2. ये wrong है ये स्टेटमेंट। तो इसके लिए बी भी हमारे बी भी क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। वेरिएबल बी इज इंटरनेशनल स्कोप एंड विल हैव वैल्यू 2। नो, वेरिएबल बी विल हैव वैल्यू 2 इफ नॉट स्पेसिफाइड व्हेन कॉलिंग फंक्शन। हाँ ये ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन, व्हाट इज फंक्शन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस
within C++ with example. A function is a self-contained block of code designed to perform a specific task. Function होता है जिसको हम क्या करते हैं, write once and can be used many times. उसको हम functions कहते हैं. अब कहता है function explain different types of function used in C++. Function दो तरह के C++ में होते हैं. Number one is user defined function. Number two built-in function. अब यूजर डिफाइंड में सपोज मैं कहता हूं मेरे पास मैंने लिखा इंट सम इंटीजर कॉमा इंटीजर, ये मेरा यूजर डिफाइंड फंक्शन है. बिल्ट इन फंक्शन स्क्वायर रूट SQR 16 पास करेंगे वो 4 आपको रिटर्न कर देगा. इसके अलावा स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग कंपेयर, स्ट्रिंग लेंथ, ये तमाम के तमाम बिल्ट इन फंक्शन है जी. नंबर टू एक्सप्लेन फंक्शन कंपोनेंट विद एग्जांपल्स. कंपोनेंट इंक्लूड फंक्शन नेम, रिटर्न टाइप, parameters and body. Examples: integer int a, integer b returns the sum of a and b. अब देखिए इसमें ये मेरे पास रिटर्न टाइप होती है, ये मेरे पास नेम ऑफ द फंक्शन है, नेम ऑफ द फंक्शन, ये मेरे पास आर्गुमेंट 1 है, ये मेरे पास आर्गुमेंट 2 है. रिटर्न द सम ऑफ a and b. तो ये इसके कंपोनेंट हुए फंक्शंस के. Define default argument. Give the advantages and disadvantages of default argument. Default arguments are values provided in the function declaration. Advantage: simpler calls. Disadvantage: may lead to confusion with overloaded function. हाँ बिल्कुल ठीक हो गया. What is meant by the term function overloading? How a function can be overloaded in C++. Explain with the help of an example program. Function overloading means having multiple functions with the same name but different parameters. Example: void show int, void show double. Okay, no worries. जब स्टार्ट करते हैं यहाँ से मैं लिखा नंबर साइन इंक्लूड iostream, iostream.h यूजिंग नेम स्पेस std. ये लिखना लाजमी नहीं है, आप इसके बगैर भी लिखेंगे तो वो कोई गलत नहीं करेगा. इंटीजर सम, फर्स्ट इंटीजर वैल्यू, सेकंड इंटीजर वैल्यू सम, इंटीजर सम, फर्स्ट इंटीजर वैल्यू, सेकंड फ्लोट वैल्यू, थर्ड इंटीजर वैल्यू. मैं लिखता हूँ void main. स्टार्ट किया मैंने, मैं लिखा इंटीजर a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 10, फ्लोट c इक्वल टू 4.3. इसके बाद मैं क्या करता हूँ, फंक्शन कॉल करता हूँ. मैं कहता हूँ सी आउट सम करे a को, c को और b को. सी आउट एंड लाइन. फिर मैं कहता हूँ सी आउट सम करे 3,4. मैं कहता हूँ सी आउट एंड लाइन और सी आउट सम करे a, b. और ये मैंने मेन क्लोज कर दिया. ठीक है, ये मैंने कॉल कर लिया. अब मैं इनकी डेफिनेशन डिफाइन करने लगा हूं इनको. ये मैंने कॉल तो कर लिया, अब मैं डिफाइन करने लगा हूं. ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पेज पे डिफाइन करने लगा हूं. नेक्स्ट पेज मैं ढूंढने लगा हूं. जरा चले इधर नहीं, चलो मैं इसको ना इस वाले फंक्शन इधर पेज पे कर देता हूं. मैं लिखा इंटीजर सम, इंटीजर x, इंटीजर y, ब्रैकेट मैंने स्टार्ट कर ली और यहाँ पे रिटर्न क्या कर देगा, x प्लस y रिटर्न कर देगा. ये मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया. दूसरा फंक्शन मैं डिफाइन करने लगा हूँ इंटीजर सम सेम नेम, इंटीजर x, फ्लोट y एंड इंटीजर z. इसमें मैं कहता हूँ रिटर्न x को प्लस y को प्लस z को. क्योंकि इस फ्लोट की वजह से, फ्लोट तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इंटीजर की जगह इसको ना फ्लोट यूज कर ले. इंटीजर की जगह इसको फ्लोट यूज कर ले, ज्यादा बेहतर रहेगा. मैंने फ्लोट कर लिया. ठीक है, रिटर्न टाइप यहाँ मैंने सेमीकोलन लगा दिया. ठीक है, क्योंकि अब मैंने फ्लोट इधर भी यूज किया, मैं उधर भी फ्लोट करता हूँ. ठीक है, मैंने कहाँ पे किया था, यहाँ पे किया था, यहाँ पे भी किया था. तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रिमूव करके ना फ्लोट कर देता हूँ. तो अब जब अब कॉल मेन रन होगा, a की वैल्यू 5 यहाँ पे दी हुई है, b की वैल्यू 10 दी हुई है, c की वैल्यू 4.3 दी हुई है. सम करेगा a की जगह यहाँ पे क्या कर लिखेगा, 5 को कॉल करेगा, c की जगह वैल्यू 4.3 लिखेगा, 4.3 लिखेगा और b की जगह वैल्यू लिखेगा 10. ठीक है, तो वो सम का जो फंक्शन, जो कौन सा फंक्शन इसका एग्जीक्यूट होगा जो इन पैरामीटर को फुलफिल करता होगा. ये पैरामीटर ऐसे हैं 3 पैरामीटर जिसमें, तो 3 पैरामीटर वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा.
इसके बाद एंड लाइन होगा और इसमें मैंने जस्ट डायरेक्ट वैल्यू कर दी 3,4। तो अब कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा? वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा जो 2 पैरामीटर लेता होगा। इसमें भी वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा जो कि 2 पैरामीटर लेता होगा। तो हमने क्या किया हुआ, हमने ये लिखा हुआ लास्ट में प्रोग्राम मैंने आपको बता दिया। एक फंक्शन में लिखा सम इंटीजर एक्स इंटीजर वाई रिटर्न एक्स प्लस वाई कर देगा। दूसरा मैंने फ्लोट किया सम इंटीजर एक्स कॉमा फ्लोट वाई इंटीजर जेड और इन तीनों को ऐड करेगा और वैल्यू को रिटर्न कर देगा। ठीक हो गया। और इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा है जी क्या, व्हाट इज फंक्शन सिग्नेचर, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट पार्ट्स। A function signature includes the function name and the parameter, list type and number. It differentiate overloaded function. जी बिल्कुल सही कहा। जैसे कि मैं लिखता हूं इंटीजर सम इंटीजर एक्स इंटीजर वाई, तो ये इसके सिग्नेचर है जिसमें इसकी रिटर्न टाइप भी है, नेम भी है, इनके नंबर ऑफ आर्गुमेंट भी है। ठीक है। दूसरे मैंने क्या लिखा, फ्लोट सम इंटीजर इंटीजर एक्स कॉमा फ्लोट वाई कॉमा इंटीजर जेड तो ये भी फंक्शन के सिग्नेचर है। मैं कहता हूं इंटीजर सम इंटीजर कॉमा इंटीजर, मैं कहता हूं फ्लोट सम इंटीजर कॉमा इंटीजर, तो ये भी एक फंक्शन ओवरलोडिंग की एग्जांपल है। अब इसमें रिटर्न टाइप मैंने डिफरेंट कर दी, बाकी सारी चीजें सेम है। तो ये भी एग्जांपल ऑफ किसकी हुई है, ओवरलोडिंग की। तो ये लिखना रिटर्न टाइप फंक्शन का नाम और आर्गुमेंट, ये इसके कहलाते हैं फंक्शन सिग्नेचर कहलाते हैं। Explain the scope of different types of variable and used in function. Local variable exists within a function. Global variables are declared outside all function. Static variable retain their value between calls. जी मैं एग्जांपल लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया इंक्लूड आयोस्ट्रीम, फिर मैं कहता हूँ जी एक फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ void function1 इंटीजर x लेता है ये, और यहाँ पे मैं कहता हूँ इंटीजर c इक्वल टू 10, c आउट करे c, तो ये c की वैल्यू 10 डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद मैं मेन लिखता हूँ, मैं कहता हूँ void main। अब void main में मैं कहता हूँ इंटीजर a इक्वल टू 10, a इक्वल टू 5, मैं कहता हूँ c आउट करे a प्लस c। अब देखिए मैंने a लिखा मेन में, तो a तो यहां से मिल जाएगा इसको, c अब c को मैं कॉल कर रहा हूं, अब c तो इसमें है नहीं वॉइड मेन में, तो ये मुझे एरर देगा। हालांकि c को मैंने डिक्लेयर किया हुआ इधर c और c करेगा तो वो डिस्प्ले काम करेगा, लेकिन जब मैं इससे हटके ये वॉइड इसके हटके मैं इधर कहीं और इसको कॉल करूंगा तो मुझे कॉल नहीं करने देगा। तो ये किसकी एग्जांपल हुई, ये हुई लोकल वेरिएबल की एग्जांपल हुई, ठीक है। हाँ, अगर मैं वॉइड से पहले मैंने लिखा हुआ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ इंटीजर d इक्वल टू 20, वॉइड से पहले यानी इंक्लूड आयोस्ट्रीम के बाद मैंने डिक्लेयर कर दिया मेन से पहले। अगर मैं इसको लिखता हूं ना c आउट करे d इक्वल टू वैल्यू ऑफ d, तो ये डिस्प्ले हो जाएगा, इसमें ये एग्जांपल होगी ग्लोबल वेरिएबल की और ये एग्जांपल होगी आपके लोकल वेरिएबल की। ठीक हो गया, ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल की। टाइम कम है, अदरवाइज मैं आपको इतनी बेहतरीन एग्जांपलें दूं कि आप याद करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट आर द पैरामीटर्स, एक्सप्लेन देयर टाइप्स विद एग्जांपल्स। Parameters are input to a function. Actual parameters are used in calls. Okay, formal parameters are defined in the function. Type include value and reference parameter. चलिए मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। मैं लिखता हूं include iostream dot h, include iostream dot h, इसके बाद void square integer n, c out square equal to n टाइम n, ये हो गया। इसके बाद मैं void लिखता हूँ, void main, मैं लिखा इंटीजर a इक्वल टू 5, फिर इसके बाद मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ स्क्वायर विद a। तो अब ये मेरा जो मैं a पास कर रहा हूँ ये मेरा एक्चुअल वेरिएबल है, सॉरी एक्चुअल पैरामीटर, और ये वाला जो n है
ये मेरा फॉर्मल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर, फॉर्मल आर्गुमेंट भी कहते हैं. Okay, of chapter number 7, that is pointers. Let's start the session. Question number 1 is, if we have the statement integer asterisk ptr semicolon, then to what pointer points? Then pointer किस चीज को point करता है? Points to an integer type variable, points to a character type variable, points to a floating point type variable, none of the above. The correct option is A, that is points to an integer type variable. क्योंकि इसके डेटा टाइप्स क्या लिखे हुए इंटीजर, इससे क्या करेगा वो इंटीजर पॉइंट्स टाइप वेरिएबल को वो पॉइंट करेगा. क्वेश्चन नंबर 2, a pointer is a keyword used to create variables, a variable that store address of an instruction, a variable that stores address of another variable, all of the above. The correct option is all of the above. All of the above. क्योंकि क्या होता है यहाँ पे correction में लिखा हुआ नीचे, a pointer is a type of variable that can store the address of another variable or instructions, and pointer use keywords to declare. Question number 3, the operator used to get value at address stored in a pointer variable is, किससे हम करते हैं? एस्ट्रिक से, एंड से, डबल एंड ऑपरेटर से, या फिर डैश से. करेक्ट ऑप्शन इज द dereference operator asterisk can access the value at the pointer address. Means asterisk. The correct option is asterisk. That is A. Question number 4. Which of the statement is correct about the following segment code? Integer I equal to 10. Okay. Integer asterisk j equal to and of I. तो इसमें क्या हो रहा है? J and I are pointers to an integer variable. I is a pointer to an integer and stored address of J. J is a pointer to an integer and stored address of I. Then J is a pointer to an integer and stored address of I. The correct option is, that is option C. क्योंकि इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है J is a pointer, बिल्कुल ठीक, to an integer and store address of I, क्योंकि I का एड्रेस स्टोर किया जा रहा है. ये देखिए हमेशा क्या होता है, राइट साइड असाइन की जाती है लेफ्ट साइड को, और राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है, एंड ऑफ आई एड्रेस में असाइन कर रहा हूँ किसको, J पॉइंटर को. क्वेश्चन नंबर 5, in pointers dereference operator asterisk is used to address the value of the pointer variable, points to the value stored in the variable pointed by the pointer variable, both A and B, none of the above. The correct option is def reference operator asterisk is used to access and manipulate the value stored at the memory address held by the pointer. That is option C. Option C, both A and B. यहाँ पे नीचे मैंने रीजन भी लिखी हुई है. Short response questions. What is pointer in C++? C++ में pointer क्या होता है? A pointer is a variable that stores the memory address of another variable. It is declared using the asterisk. Asterisk के साथ ही मैं इसको declare करते हैं. For example, integer pointer ये मैंने declare कर दिया, store of in other integer variable. किसी दूसरे integer variable के address को ये store करेगा. Question number 2. How do you declare and initialize a pointer? A pointer is declared by placing a asterisk before the pointer name. It can be initialized with the address of a variable using AND operator. Example, integer x equal to 5. Integer pointer AND of x. ये क्या करेगा? Integer pointer, ये pointer की data types क्या है? ये pointer की data type integer है, तो ये integer type variable के address को keep करेगा. और x आपको पता है ये क्या है, ये ऑलरेडी इंटीजर ही है, ये इसके एड्रेस को कीप करेगा.
Question number 3, what is the purpose of the and asterisk operators in C++? The AND operator is used to obtain the address of a variable, and asterisk is used in the dereference operator used to access the value at the address stored in a pointer. And address के लिए यूज किया जाता है और asterisk pointer के उसको value को access करने के लिए. Question number 4, differentiate between pointer to variable and pointer to pointer. A pointer to a variable hold the address of a basic variable, for example, integer asterisk p equal to end of a. इसमें क्या हो रहा है? Variable hold the address of another variable. A pointer to pointer holds the address of another pointer, for example, integer asterisk p of end of p. तो ये pointer to pointer हो रहा है. Question number 5, explain any two application of pointers. Pointers are used in dynamic memory allocation and are for efficient array and string handling. They are also critical in creating complex data structures like linked list, tree, and graphs. Chapter number 8. Chapter number 8 is about classes and objects. Let's start the session. Question number 1 is, a constructor is called whenever an object is destroyed, an object is created, a class is created, a class is declared, a class is used. The correct option is an object is created. Okay, जब हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस वक्त वो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है. सपोज क्लास का नाम अगर मेरे पास होगा ना, क्लास ABC, ये मेरे पास एक क्लास है, तो जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना ABC OBJ, तो ये मैंने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, तो इसके साथ ही कंस्ट्रक्टर आपका एग्जीक्यूट हो जाता है. ये ऐसे ही है जैसे मैं लिखता हूं इंटीजर ADC, ये मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ये भी मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेकिन इस वेरिएबल की डेटा टाइप्स है ABC यानी कि क्लास, तो इसलिए हम इसको कहेंगे ऑब्जेक्ट. क्वेश्चन नंबर 2, डिस्ट्रक्टर इज यूज्ड फॉर. डिस्ट्रक्टर किस लिए यूज करते हैं? इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ डेटा मेंबर्स इन एन ऑब्जेक्ट. नो, नेवर. Initialize array, no. Free memory allocation to the object of the classes when it was created. Yes, this one is the correct. Number 4th option is creating an object. The correction, destructor release memory and clean up, that is number C. The correct option is number C. Next question. Question number 3. The name of destructor is always preceded by the symbol tilde sign के साथ, जो कि tilde sign ऑप्शन डी में शो किया जा रहा है. ठीक है, tilde sign के साथ हम इसको यूज करते हैं. डिस्ट्रक्टर डिक्लेयर करने के लिए हम tilde sign यूज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्टर आर यूजली यूज्ड फॉर. किस लिए यूज किया जाता है? कंस्ट्रक्टिंग programs, running classes, initializing object, all of the above. तो इसमें correct option is initializing objects, that is C, option C. Question number 5, inheritance is used to, किस लिए यूज की जाती है? Increase the size of a program, no. Make the program simpler, no. Provide the facility of the code reusability, provide the facility of data hiding. अब देखिए डेटा हाइडिंग भी क्लास में होती है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ कोड रीयूजेबिलिटी. ये दोनों ऑप्शंस ट्रू हो सकती है, कोड रीयूजेबिलिटी भी होती है और डेटा हाइडिंग भी होती है इसमें, लेकिन ऑप्शन 2 हम सिलेक्ट नहीं कर सकते. तो इसलिए मेरे नजदीक में अब यहाँ पे क्या कहूंगा, ये एग्जिस्टिंग रीयूजेबिलिटी आप ज्यादा सूट करती है, तो इसलिए मैंने रीयूजेबिलिटी को क्लिक कर दिया. क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन से रिलेटेड है. Explain the term object and classes with examples. A class is a blueprint or template for creating object. Object create करने के लिए template होता है. It defines attributes, इसमें variable declare करते हैं, and functions होते हैं. An object is instance of a class. Example,
एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्लास कार ली हुई है, पब्लिक इंटीजर स्पीड, ये मैंने एक वेरिएबल इंटीजर डिक्लेयर किया हुआ है, और ये मेरी क्लास इनिशियलाइज क्लास मैंने डिक्लेरेशन हो रही है, और इसके बाद मैंने लिखा है कार, एक क्लास का नाम लिखा, अगर आगे उसका ऑब्जेक्ट मैंने डिक्लेयर कर दिया, तो ये मैंने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया किसी भी क्लास का। ठीक हो गया। इसको मैंने फिर मैंने क्या कर दिया, माई कार मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट माई कार का डिक्लेयर किया था, तो इसलिए मुझे माई कार लिखना पड़ा। डॉट स्पीड, स्पीड क्यों लिखा, क्योंकि स्पीड इसका वेरिएबल है इस क्लास का, इंटीजर टाइप वेरिएबल, तो उसके लिए स्पीड इक्वल टू मैंने 100 लिखा। अगर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ स्पीड इक्वल टू 100, तो वो कहेगा कि स्पीड इज अनडिफाइंड, स्पीड तो आपने डिक्लेयर किया ही नहीं कहीं। ठीक है, तो मैंने कहा चले मैंने इधर नहीं किया, तो ये क्लास में जो पड़ा हुआ वो लेके आओ। तो जब क्लास वाले को हमने कॉल करना पड़ा है, तो हमें किसी ऑब्जेक्ट के साथ वो कॉल कर सकते हैं। Question number 2. How objects are created and access members of a class? Objects are created using the class name and members are accessed using the dot operator. डॉट ऑपरेटर के साथ क्लास मैंने स्टूडेंट लिखी, पब्लिक स्ट्रिंग नेम लिख दिया, ये क्लास मैंने डिक्लेयर कर दी। ठीक है, और इसमें स्ट्रिंग नेम एक वेरिएबल है, तो स्टूडेंट एस, स्टूडेंट ये क्लास का नाम था, एस मेरा एक ऑब्जेक्ट बन गया इधर। ठीक है, और ये फिर एस डॉट नेम मैंने क्या लिख दिया, अली लिख दिया। ठीक है, ये एक्सेसिंग मेंबर कर दिया, एस डॉट नेम, डॉट के साथ मैं मेंबर को एक्सेस कर रहा हूँ, उसके एट्रीब्यूट को एक्सेस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3. What are the access specifier? Explain private and public specifier with examples. Access specifier control access to class, public होता है, private होता है और protected होता है। क्लास ए प्राइवेट इंटीजर x आपने लिखा, पब्लिक इंटीजर y लिखा है। ठीक है, तो ये मैंने प्राइवेट भी एक्सेस कर लिया, पब्लिक भी कर लिया। पब्लिक जो होता है, जो पब्लिक में हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू मेन में एक्सेस कर सकते हैं। What is data hiding? Explain. Data hiding means restricting access to internal objects detail. It is achieving using private example. Suppose आपने integer structure लिखा, ठीक है, integer secret लिखा, तो ये प्राइवेट में जो वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, ये आपके पास डेटा हाइडिंग है, हम इसको क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, मेन में इसको एक्सेस नहीं कर सकते। Question number 5. Explain constructor and destructor class member function with an example. चले हम इसकी भी एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्लास ए, क्लास का नाम ए है, पब्लिक, ये मैंने मेथड डिक्लेयर कर लिया, ए ही मैंने रखा क्योंकि क्लास का नाम ए था, तो इसलिए मुझे ए ही रखा, तो ये कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। अगर मैं टिल्डा साइन इसके साथ यूज कर दूंगा तो वो डिस्ट्रक्टर बन जाएगा। सीओड क्या करे, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर। तो ए ऑब्जेक्ट, जब है मैं ये क्लास का नाम ए है, और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट कौन सा डिक्लेयर कर रहा हूँ, ओबीजे। जब ये ओबीजे बनेगा तो बाय डिफॉल्ट ये फंक्शन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, दैट इज कंस्ट्रक्टर। और जब ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो उस वक्त डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6. एक्सप्लेन इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म विद एग्जांपल. Inheritance lets class use properties of another class. Polymorphism allow function behavior to vary based on an object. Class A लिखा मैंने, क्लास A में public void show लिख दिया, cout class A, class B लिख दी, public of A। अब B चाइल्ड क्लास है और public A इसका पेरेंट है, आगे उसका पेरेंट आ जाता है। ठीक है, इसके बाद इंटीजर मेन आपने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया चाइल्ड क्लास का, obj डॉट शो आपने कर दिया जी, obj डॉट शो इनहेरिटेंस शो फ्रॉम ए, तो यहाँ पे वो इनहेरिटेंस क्या करेगा, उसके फंक्शन कॉल करेगा फ्रॉम ए से। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ द कॉन्सेप्ट हियर। चैप्टर नंबर 9, that is file handling. Then let's start the session. Question number 1 is dash stands for EOF. EOF means end of file. You can check that where is end of file is there. This one is error on files, no. End of file, this is the correct. Exit of file, no, none of the above is correct. Okay, the correct option is end of file. Second question is dash is used in file handling to open a file. Open a file के लिए हम क्या यूज करते हैं,
to open C++ compiler, to open a file, both A and B, none of the above. The correct option is to open a file, क्योंकि हमने फाइल को ओपन करने जा रहा है, to open a file. Question number 5. IO's scope resolution operator binary is used in open functions for opening files for input operation, opening file for output operation, opening file in binary mode, none of the above. Because you have mentioned IO's binary, that's why they will open the file in binary mode. The correct option is C, that is opening file in binary mode. Short question is, what is the file handling? Explain different types of file. So file handling in C++ allow reading from, रीड भी कर सकते हैं, एंड राइटिंग टू फाइल्स, और फाइल में आप राइट भी कर सकते हैं यूजिंग स्ट्रीम. There are two types, main types, text file and binary files. Text file and binary file, for example, here I have written include fstream header file, then offstream fout file.txt. It will create a notepad file. File name will be the file and .txt is the extension. And because you have created an object with the name of fout, they will use fout hello file. They will write this string into that file, hello comma file. Question number 2. Describe different types of operations performed on file. File operation including opening. हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? Opening a file, reading a file, writing a file, appending a file, and closing a file. If stream fin, this is opening for reading mode. fin reading mode, and offstream fout file.txt opening file for writing mode. This is writing mode. Okay, and fin.close, that is used to closing a file. Because why I'm using with fin? Because I have declared object with the name of fin. That's why I am using fin with everywhere. And if I want to write a text, what I have to write? I have to write fout, and here I need to write my text like this. Question number 3. Explain BOF and ENDOF functions. EOF check if the end file is reached. BOF is not a standard C++ function. Okay. If stream fin, you are going to open a file with the name of file.txt with object fin string line, while not end of file, you are writing this loop will execute until you are reaching on end of file. Not fin dot end of file. What they will do? They will get line is a function through this object, and they will store into variable line into variable string. Line is a string variable. They will store into line, and cout they will show the line. For example, here you have written a file. This is the contents of the file. They will read first line and store into this line, and then this line, by using cout, it will display on your output screen. After this, it will get second line, and it will store into variable line, and through this line they will show into the output screen. So on third line, fourth line, fifth lines. In this way, it will display all the lines in output screen. Question number 4. Define streams. Describe input and output streams in detail. A stream is a flow of data. Input stream like CIN or if stream used to read the data. Output stream like cout and off stream used to write the data into the file and output screen. If you will use cout, they will display the data on output screen. If you will use off stream, they will write the data into a file. Example.
Enter the number you have entered in X, you have entered X. This is a using a cout stream. Question number 5. What is meant by the term mode of opening? Mode of file opening describe different modes of opening file. File opening mode define how a file is accessed, and scope resolution IO scope resolution operator used in for read mode and out for write mode, app for append mode, and binary for the binary mode. Example: offstream fout, you have written a file.txt, ios.append, it will open in a append mode. Append mode means, for example, if you have written all this data, hello is there, hello ABC. Now you are writing, in other words, computing, then knowledge, it will append here, computing knowledge. Okay, it will append. Append means it will add the lines. And at the last, I want to say thanks and Jazakallah khair.